بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ جمعہ ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا 110واں سورہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے۔ اس سورے میں 11 آیتیں ہیں اور ان آیتوں میں سے ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ان 4 آیتوں میں پروردگار عالم نے مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائی۔ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کا اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یعنی سورہ جمعہ کا آغاز لفظ تسبیح سے ہے، یسبح۔ قرآن مجید میں وہ سورے جو سبحہ اور جو سبحہ سے شروع ہوئے ہیں وہ ہے 5، اور ایک سورہ اس کے مصدر سے شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بے عیب ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اور وہ سورہ جو تسبیح کے امر سے شروع ہوا وہ ہے سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ اور خدائے بزرگ و برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ تو مجموعی طور پر وہ سورے جو پروردگار کی تسبیح سے شروع ہوتے ہیں ان کی تعداد 7 ہے، اور انہی سوروں میں سے ایک سورہ سورہ جمعہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اور آسمان و زمین کی ہر شے یسبح للہ، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی۔ یہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے، مالکیت اس کی ہے۔ یہ اللہ قدوس ہے، بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، سارے کمالات اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ عزیز ہے، صاحب عزت ہے اور صاحب اقتدار ہے۔ یہ اللہ حکیم ہے، یعنی جو کام بھی کرتا ہے وہ مصلحتوں کے تحت اور کسی نہ کسی منطق اور کسی نہ کسی فلسفے کے پس منظر میں کام کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ هو الذی، اب دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور اس رسول کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرے، تلاوت تزکیہ۔ اور اس رسول کا تیسرا اور چوتھا کام یہ ہے کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کے آنے سے قبل وہ سارے کے سارے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ ہے دوسری آیت۔ اور اب تیسری آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ دوسرے لوگ جو ابھی ان لوگوں سے، ہدایت پانے والوں سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اس رسول کا فریضہ یہ ہے کہ ان آنے والوں تک بھی اپنے پیغام نبوت کو اور پیغام رسالت کو پہنچائے۔
वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, इज्जत के मानी इक़्तिदार, और वो अल्लाह साहिब हिकमत भी है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती है मन यशाओ, वो अल्लाह का फजल है, नबूवत का अता कर देना, रिसालत का दे देना, किसी शख्स को आयात की तिलावत पर मामूर कर देना, किसी शख्स को तज़किया नफ्स इंसानी का फरीजा देकर भेज देना, ये सारे के सारे काम अल्लाह का फजल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती है मन यशाओ, दे देता है उस फजल को जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह साहिब फजल अजीम है। अब आपने तवज्जो फरमाई कि पहली आयत में परवरदिगार ने 4 नाम दिए, जो सब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं, यानी अगर आप तर्जुमा पढ़ें तो बज़ाहिर आपको ये एहसास होगा कि भाई ये लफ्ज़ यूं ही आयत को नऊज़ु बिल्लाह फिनिश करने के लिए रख दिए गए हैं। लेकिन अगर आप एक एक लफ्ज़ पर रुकें, अस्माए हुस्ना में से एक एक इस्म पे रुकें, तो आपको यह अंदाजा होगा कि कोई इस्म और कोई लफ्ज़ जो परवरदिगार आलम से मखसूस है वो उस आयत से गैर मरबूत इस्तेमाल नहीं हुआ। बस उसकी फ़कत एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर दूं। भाई शान नुज़ूल के एतबार से सूरह जुमा 110वां सूरा है, और शान नुज़ूल के एतबार से सूरह हुजुरात 109वां सूरा है, यानी इससे कबल का सूरा, और उसका आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अब 2 लफ्ज़ दे दिए ना, समीउन के मानी सुनने वाला, अलीमुन के मानी जानने वाला। तर्जुमा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही, देखो खबरदार खबरदार, अल्लाह और उसके रसूल से मुक़द्दम होने की कोशिश न करना। ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही, खुदा और रसूल पर सबकत लेने की कोशिश न करना। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना। इन्नल्लाहा समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है। भाई खुदा पर सबकत किस तरीके से ले जा सकता है इंसान? रसूल पर तो सबकत मुमकिन भी है कि साथ जा रहे हो पैगंबर अकरम के साथ, है ना, और नऊज़ बिल्लाह जरा सा आगे बढ़ जाए तो मुकद्दम हो गए ना, लेकिन खुदा से तो मुकद्दम हो ही नहीं सकते ना। लेकिन दोनों शख्सियतों का तज़किरा है कि ईमान लाने वालों, न खुदा से मुकद्दम होने की कोशिश करो और न रसूल से मुकद्दम होने की कोशिश करो। तो यहां मुकद्दम होने के मानी फकत कदमों से आगे बढ़ जाना नहीं है, बल्कि अपने इरादे को उसके इरादे पर हावी न करो, अपने कौल को उसके कौल पर बुलंद न करो, अपने अमल को रसूल के अमल के मुकाबले में बुलंद न करो। तो भाई बुलंद करने की 2 ही सूरतें हैं, बुलंद करने की कौल और अमल के 2 ही सूरतें हैं। या तो इंसान अपने कौल को खुदा और रसूल के कौल पे बुलंद कर दे, या इंसान अपने अमल को रसूल के अमल से बुलंद करार दे दे। 2 ही तो सूरतें हैं ना, या कौल से तकद्दुम करेगा या अमल से तकद्दुम करेगा। तो परवरदिगार ने इसीलिए इरशाद फरमाया इन्नल्लाह समीउन अलीम, अगर तुमने कौल से तकद्दुम की कोशिश की तो वो समी है, सुन लेगा, और अगर तुमने अमल से तकद्दुम की कोशिश की तो वो अलीम है, जान लेगा। तो इसी तरीके से कोई लफ्ज कुरान मजीद का ऐसा नहीं है। इन्हें फवासिल कुरान कहा जाता है। वो अस्माए हुस्ना जो कुरान मजीद में आयतों के आखिर में इस्तेमाल होते हैं, ये है फवासिल कुरान। तो फवासिल कुरान में से कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो आयत से मुत्तसिल और आयत से मरबूत न हो। जो सब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। मैंने किसी मंजिल फिक्र पर किया था और सरसरी गुजरना है मुझे इस मकाम से। तस्बीह कर रही है कायनात की हर शय अल्लाह की। ये अल्लाह मलिक है, मलिक जिसकी मालिकियत हो। भाई बहुत तवज्जो रखिएगा, ये मलिक है यानी पूरी कायनात उसकी मिल्कियत है। अच्छा, जब ये पूरी कायनात उसकी मिल्कियत है तो वो चाहेगा कि इस कायनात का जर्रा जर्रा उसके सिफात का मजहर बनकर आ जाए। तो वो कुद्दूस है, बेऐब है, इसलिए जो शय भी तख्लीक करेगा वो बेऐब होगी, कमाल तख्लीक की मंजिल पे होगी। तो मालिक है ना, अब उसने बेऐब अशिया को खल्क किया। भाई फर्ज कीजिए कि मैं इस तस्बीह का मालिक हूं, लेकिन मालिक होने का मतलब यह नहीं है कि यह तस्बीह मेरे पास और मेरे तसर्रुफ में भी हो सकता है कोई मुझसे छीन ले, मिल्कियत मेरी, तसर्रुफ किसी और का हो सकता है ना। इसलिए मलिक के बाद लफ्ज़ कुद्दूस रखा कि पूरी तख्लीकात बेऐब है, और उसके बाद लफ्ज़ रखा अजीज, वो साहिब इख्तिदार है, यानी तन्हा मालिक साहिब मिल्कियत नहीं है,
तसर्रुफ भी उसी का है, किसी और का हक नहीं है कि उसके तसर्रुफ में मुदाखलत कर सके। और उसके बाद परवरदिगार ने यह इरशाद फरमाया कि वो हकीम है, कोई काम मसलहत के बगैर अंजाम नहीं देता। तो ये जो बार बार कुरान मजीद में अस्माए हुस्ना इस्तेमाल हुए हैं, वो अजीज है, वो हकीम है, वो हमीद है, वो जब्बार है, वो मुतकब्बिर है, वो कहार है, वो वदूद है, मुसलसल परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में आयतों के आखिर में इन अस्मा को इस्तेमाल किया। तो भाई इन अस्मा को इतनी शिद्दत के साथ प्रोड्यूस करने की या प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्या थी? तो देखिए, जिस मुआशरे में कुरान आ रहा था उस मुआशरे में 365 खुदा पूजे जा रहे थे, देवियां देवता। इल्म की देवी अलग, हिकमत की देवी अलग, मोहब्बत की देवी अलग, नफरत का देवता अलग, पानी बरसाने वाला अलग, गल्ला उगाने वाला खुदा अलग, यानी सारे के सारे खुदा, मोहब्बत का खुदा अलग, बहार का खुदा अलग, खिजा का खुदा अलग। तो उनके जहन में तसव्वुर यह था, बुतप्रस्तों के जहन में, कि हर सिफत का खुदा और हर सिफत के देवी देवता अलग है। जो मोहब्बत का है वो नफरत का खुदा नहीं है, जो नफरत का है वो मोहब्बत का खुदा नहीं है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने बार बार कुरान मजीद में इन अस्माए हुस्ना को इस्तेमाल किया कि हिकमत भी उसी की है, इल्म भी उसी का है, मोहब्बत उसी के पास है, नफरतें और गजब उसी के पास है, कहारियत उसी का हक है, जब्बारियत उसी का हक है। तो जो शय जिस मुआशरे में जितनी ज्यादा काबिल कबूल और पसंदीदा होती है उतनी और गलत हो, उतनी ही शिद्दत के साथ जरूरत होती है कि उस तसव्वुर को और उस पसंदीदा शय को रद्द किया जाए। इसीलिए परवरदिगार ने इन अस्मा में बतलाया कि भाई उसकी कैफियत और शख्सी और सिफात के मज़ाहिर अलग अलग हैं, जात फकत एक है। यानी मजहर कभी वो रहमत का इजहार करता है, कभी वो गजब का इजहार करता है, कभी हिकमत का इजहार करता है, कभी इल्म का इजहार करता है। यानी ये शख्सियतें अलग अलग नहीं है, शख्सियत एक है, जात एक है, उसकी सिफतों के मज़ाहिर अलग अलग हैं। अगर ये बात मैं वाज़ेह कर सका तो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि भाई वो मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है, चार सिफतें दी और उसके फौरन बाद कहा कि ये अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल को भेजा और इस रसूल का काम यह है कि वो आयात की तिलावत करे, नफ्सों का तज़किया करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। भाई फरीज़े पैगंबर के कितने हैं? आयात की तिलावत, नफ्सों का तज़किया, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम, चार फरीज़े हैं ना। तो अब अजीब और गरीब मसलहत है इन दोनों आयतों में कि पहली आयत में परवरदिगार के चार नाम, मलिक, कुद्दूस, अजीज और हकीम, और दूसरी आयत में पैगंबर के चार फरीज़े है ना, पैगंबर के चार फरीज़े, तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, तालीम किताब, तालीम हिकमत। मलिक है, बादशाह है, तो बादशाह ये चाहेगा ना कि उसका पैगाम उसकी रियाया तक पहुंच जाए। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये आयत है बीच में। इससे पहले आयत क्या है? युसब्बिहु लिल्लाह मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। पहली आयत में है अजीज हकीम। अच्छा, ये है दरमियान में आयत। उसके फौरन बाद क्या है? व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यानी रिसालत से पहले भी अजीज हकीम का तज़किरा, रिसालत के बाद भी अजीज हकीम का तज़किरा। आपने अगर पूरी तरह तवज्जो फरमाई हो तो मैं इन दोनों लफ्जों के पस मंजर को चाह रहा हूं कि वाज़ेह करूं। भाई इस लफ्ज अजीज हकीम की कोई बैकग्राउंड होगी ना। अर्ज करूं सूरह बकर, और सूरह बकर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तवील है, पूरा एक सिलसिला है, और जाहिर है कि मैं पूरे सिलसिले को आपकी खिदमत में पेश नहीं करना चाह रहा हूं तर्जुमे के साथ। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना अरेना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। यह है अजीज और हकीम की बैकग्राउंड। सूरह बकर दूसरा सूरह कुरान मजीद का। उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिलकर खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे और ये दुआ मांग रहे थे कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, तू सुनने वाला भी है, तू जानने वाला भी है। रब्बना अरेना मनासिकना, परवरदिगार
हमारी इबादतों की जजा हमें इस दुनिया ही में दिखला दे। बाप बेटे दुआ मांग रहे हैं, वतुब अलैना, और हम दोनों की तौबा को कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू तौबा को कबूल करने वाला और रहमतें नाजिल करने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हम दोनों को, बाप बेटे कह रहे हैं, हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में अपने लिए एक मुसलमान उम्मत को करार दे। यह दुआए इब्राहिम है, यह दुआए इस्माइल है, इसके रद्द होने का इम्कान नहीं है। परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे और हमारी नस्ल में, दोनों की नस्ल में एक मुसलमान उम्मत को करार दे जो मुसलसल चलती रहे। अब दुआ देखें, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, परवरदिगार मबऊस फरमा उनमें एक रसूल को, इनमें उम्मत मुस्लिमा में, उस उम्मत मुस्लिमा में एक रसूल को मबऊस फरमा, मिनहुम जो उन्हीं में से हो। यतलू अलैहिम आयातिका, उस रसूल का काम यह हो कि वो तेरी आयतों की तिलावत करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उस रसूल का काम यह हो कि वो उन्हें किताब की तालीम दे और हिकमत की तालीम दे। व युज़क्कीहिम, और उस रसूल का काम यह हो कि वो लोगों के नफ्सों को पाक बनाए, उनका तज़किया करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, परवरदिगार तू साहिब इख्तिदार है, तेरे अलावा कोई भेज नहीं सकता, इसलिए तुझसे कह रहे हैं। अजीज, अजीज का तर्जुमा कर रहा हूं, तू साहिब इख्तिदार है, कोई और रसूल भेज नहीं सकता, इसलिए तुझसे हम दुआ मांग रहे हैं। और तू हकीम है, जिसे भेजेगा ऐन मसलहत और ऐन हिकमत के मुताबिक भेजेगा, इसलिए हम किसी को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, फकत दुआ मांग रहे हैं। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो फकत उसके खसाइल और उसके खुसूसियात बयान कर दिए। तो जिन लफ्जों में इब्राहिम और इस्माइल ने दुआ मांगी थी, अब ये तो नबी उलुल अज़्म की शान है ना, कि जिन लफ्जों में हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, उन्हीं लफ्जों में परवरदिगार आलम ने उस दुआ को सूरह जुमा में पूरा किया। लफ्जों को लफ्जों से मिलाने, वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो जिन लफ्जों में दुआ मांगी इब्राहिम और इस्माइल ने, परवरदिगार ने उन्हीं लफ्जों में उस दुआ को कबूल फरमाया। लेकिन अब साहिबान फहम को मुतवज्जे कर रहा हूं, भाई जिन लफ्जों में इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, उन्हीं लफ्जों में कबूल हो गई ना, लफ्जों को लफ्जों से मिलाने, लेकिन तरतीब बदली हुई है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, परवरदिगार उनमें एक रसूल को मबूस कर। काम क्या हो? यतलू अलैहिम आयातिका, उनका काम यह हो कि उस रसूल का काम यह हो कि वो आयात की तिलावत करे। पहला काम क्या है? तिलावत आयात। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उसका दूसरा और तीसरा काम क्या हो? किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। पहला काम तिलावत आयात, दूसरा काम तालीम किताब, तीसरा काम तालीम हिकमत। व युज़क्कीहिम, और उस नबी का चौथा काम यह हो कि वो लोगों के नफ्सों का तज़किया करे। व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, हबीब तुझ पर तो हम बड़े अजीम फजल नाजिल करते रहे हैं। काना के लफ्ज के साथ है, यानी हयात मोहम्मद जब से है, खुदा का फजल अजीम उसका शरीक है। हयात मोहम्मद जब से है, खुदा का फजल अजीम हयात मोहम्मद के साथ है। अब ये जुमला आसान नहीं है भाई, 1,24,000 पैगंबरों के लिए परवरदिगार ने ये किसी एक के लिए सिवाय मोहम्मद अरबी की ये नहीं कहा कि हमने उसे फजल अजीम अता किया, यानी लफ्ज अजीम के साथ फजल का तज़किरा किसी और नबी के लिए नहीं। अब मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि तौरेत देख डालें, पूरी इंजील देख डालें, जितने सहीफे आए, सहीफे हिस्कियाल, सहीफे दानियाल, मल्लाकी नबी, इंसिया का सहीफा, किसी का भी सहीफा देखें, कहीं ये नहीं मिलेगा कि जब फला नबी का नाम लो तो उसके साथ फला ताजीमी लफ्ज कहो। नहीं है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए तो तौरेत में हो कि भाई जब मूसा कहो तो फला लफ्ज भी कहना ताजीमी। नहीं, ये शरफ मुख्तस है पूरी कायनात के अंबिया में, फकत हमारे नबी के साथ, कि परवरदिगार ने यह इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह
دیکھیے یہ ہے فضل عظیم جہاں میں گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں. اللہ اور اس کے فرشتے, ان اللہ اللہ و ملائکتہ, اور اس کے فرشتے. بھائی فرشتے کیا کسی اور کے بھی ہوتے ہیں؟ یہ اس کے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیتا کہ اللہ اور فرشتے نبی پہ درود بھیجتے. نہیں, اس کے فرشتے, یعنی بتلانا یہ تھا کہ اللہ تو درود بھیجتا ہی ہے, یہ جو فرشتے بھیج رہے ہیں یہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں, اسی کی نمائندگی میں بھیج رہے ہیں. اس لیے اس کے لفظ رکھا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں, درود بھیج رہے ہیں. یہی ہے نا ترجمہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, صلو علیہ, تم بھی اس پہ درود بھیجو, وسلموا تسلیما, اور اس کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. یہی ہے نا ترجمہ. کس سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو؟ اس امت محمدیہ میں جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں یا نہیں؟ تو اب ہر ایک پر یہ لازم ہے نا کہ ذکر محمد پہ درود بھیجے, لازم ہے نا. بھائی اب میں کیسے عرض کروں, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, ہے نا, الیاس علیہ السلام زندہ ہیں, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. اب جو قرآن آیا اور اس نے کہا ایمان لانے والوں نماز پڑھو, تو اب عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے یا نہیں؟ یعنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اس کے خطاب میں عیسیٰ شامل ہے یا نہیں؟ اس کے خطاب میں حضرت الیاس شامل ہے یا نہیں؟ اس کے خطاب میں حضرت خضر علیہ السلام شامل ہے یا نہیں؟ تو ہر حکم قرآنی میں جو بھی نبی پچھلی امتوں کا ہو, اگر وہ زندہ موجود ہے اس وقت, تو ہر حکم قرآنی میں وہ شریک ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے میں عیسیٰ بھی ہیں, خضر بھی ہیں اور الیاس بھی ہیں. تو کیا اب ان سے یہ خطاب نہیں ہے کہ جب نام محمد آئے تو اس پہ درود بھیجو؟ تو اب یہ وہ مقام فضیلت محمد ہے جہاں اولو العزم انبیاء محمد عربی پر درود بھیج رہے ہیں. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. لیکن ایک لفظ کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ نبی پر. محمد پر نہیں, احمد پر نہیں, رسول پر, لفظ رسول آ جاتا نہیں. وہ بڑا پیارا لفظ ہے اللہ کا, عبد. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, اپنے بندے کو لے گیا تو بندے پہ درود ہو جاتی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد, یصلون علی الرسول, یصلون علی محمد نہیں, یصلون علی النبی. اب کوئی بات تو ہے, حالانکہ نبی بڑے چھوٹے درجے کی بات ہے. نبی وہ جو اللہ سے خبر لے, رسول وہ جو بندوں تک خبر پہنچائے, ہے نا. عبد وہ جو معراج میں بلایا جائے. تو بڑا لفظ کون سا تھا؟ اب اللہ اور اس کے فرشتے عبد پہ درود بھیجتے ہیں نہیں, اللہ اور اس کے فرشتے رسول پہ درود بھیجتے ہیں نہیں, نبی پہ درود بھیجتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا. تو عزیزو, یہ عبدیت کا اعلان کب ہوا؟ معراج کے موقع پہ. معراج کب ہوئی؟ ہجرت سے 2 سال قبل. تو اگر لفظ عبد آ جاتا تو درود ہجرت سے 2 سال قبل معین ہو جاتی. بہت ہی واضح اور 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو لفظ اب کو ہٹا دیں, اس لیے نہیں رکھا گیا کہ درود کا زمانہ معین ہو جاتا. پروردگار رسول رکھ دیتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول. بھائی رسول پیغمبر کب ہوئے؟ جس دن انہوں نے پیغام کو عام کیا, غار حرا سے, کوہ فاران کی چوٹی سے, کوہ صفا سے, یعنی جس دن انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اس دن رسول ہوئے. تو درود پھر اس دن سے ہو جاتی. کہا کہ نہیں, ہم اس کے لیے وہ زمانہ معین نہیں کریں گے جو اس دنیا کا زمانہ ہو. درود نبی پہ آ رہی ہے, اور نبی وہ کہ کن تو نبیًا و آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, تو آدم کا پتلا بنا نہیں تھا اور محمد پر رحمتیں نازل ہو رہی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.